जी सर। जी सर। 2x होल स्क्वायर सर। 3x होल स्क्वायर। 3y होल स्क्वायर। 3y होल स्क्वायर। 4z होल स्क्वायर। जी सर। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अभी ये टर्म और ये टर्म में माइनस है, देखो दिख रहा है। Can you see in the last two terms we have negative sign? So हाँ how जी। जी to सर। get the minus sign in which term, that I am going to tell you. इसके अंदर कॉमन कौन सा है, इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन वेरिएबल कौन सा है? जेड सर, जेड। z इज कॉमन वेरिएबल। ओके, वेरी गुड। तो या तो तुमको z में साइन लगाना होगा माइनस का, पुट नेगेटिव साइन इन z, और दूसरा ऑप्शन है x और y दोनों में माइनस साइन लगाना होगा। ओके, either you have to put in the negative यस sign in सर। the जी term सर। of z, or you can put the negative sign in x and y both. तो इन एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए हम जो है एक्स में साइन लेना नेगेटिव अवॉइड करेंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे माइनस इजेड, इजेड वाले टर्म में हम माइनस लिख सकते हैं। तो ये जो इजेड वाला टर्म लिखा ना आपने अभी यहाँ पे यस फोर सर। इजेड, तो इसमें माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें तुम जब माइनस लगाओगे तो उसके बाद चेक करो। अभी यहाँ जो माइनस का स्क्वायर है वो तो प्लस हो जाएगा, और इस टर्म में एक माइनस आएगा, ये माइनस की वजह से यहाँ बार बाद में माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस हो जाएगा। यानी लास्ट दो टर्म में नेगेटिव आ रहा है, देखो। यानी ये दो जो चीज है, इससे जो ये फॉर्म हमने लिखा है वो अभी इक्वल हो रहा है कि नहीं? यस सर। राइट, तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। नाउ डायरेक्टली वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 4z द होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। सो देयरफॉर दिस फैक्टराइजेशन इज ओवर। So this is how you have to do. Okay, right? यस सर। So the second sum you can do, I think. This is of the form, which form? This is of the form a plus b the whole cube, a plus b the whole cube, or you can also write x plus y the whole cube. The problem is, write the following cubes in the expanded form. Okay, you are going to expand this. So the expansion is given in two ways, that is a cube plus 3a square b plus 3ab square। expand के लिए ये यूज करेंगे, प्लस बी क्यूब। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है आपका, इसको आप ले लेना है और एक बॉक्स में हम इसको लिख लेंगे।
Now here a equals to, what is your a? You have to write. What is your a? Your a is 3 by 2x and your b is 1. Okay, so a cube, this according to this formula, ये जो terms है ना, इसको एक bracket के form में हम लोग लिखेंगे इसको. So it is a cube, that is a cube plus 3 into a into b square, a square b, okay. So a square b plus 3a into b square plus b cube. So right, first of all you must write this one in this form, how I have written in the bracket form, that type you have to write. Okay, ये 2 plate वो वाला ऑन करना. So 3 by 2x, here also 3 by 2x 1, 3 by 2x 1, and finally 1. And the next step for this is cube of 3 is what? Cube of 3. Cube of 3 is what? Hello. 27. So 27 by cube of 2. 8. So 27 by 8x cube plus 3 into 9 by 4 x square plus 3 into 3 by 2 x plus 1. So finally you have to write 27 by 8x cube plus 27 by 4x square plus 9 by 2x plus 1. So this is the expanded form of this one. Okay, clear this one? Yes sir, clear. So no doubt up to this. No sir. Okay, good. So next we are going to do it fourth sum. Okay, जी sir. Yes sir. so the fourth sum we are going to do here. This is of the form x minus y लिख सकते हैं और a b भी लिख सकते हैं. ऑलरेडी x है इसलिए हम a minus b लिखेंगे. दिस इज ऑफ द फॉर्म a minus b the whole cube, which is equal to a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. Here a equal to x and b is 2 by 3y. Okay, ऐसे लेंगे हम. So the next step is a cube minus 3a square b plus 3a b square minus b cube. Okay, right. So what is a? A is x, b 2 by 3y and 3 into x into 2 by 3y the whole square minus 2 by 3y. Okay, so a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube, which is again equal to x cube minus 3x square into 2 by 3y plus 3x into 4 by 9 y square minus 8 by 27 y cube. Okay, are you understanding? Yes Understanding sir, this? understanding. Okay. So the final step is x cube. ये 3 कट हो जाएगा. ये जो 3 है इस 3 से कट होगा.
और ये जो 3 इस 9 में कट होगा 3 टाइम. ओके, क्लियर? Okay, so the final answer is 2x square y minus 2x square y plus 4 by 3 plus 4 by 3 xy square minus 8 by 27 y cube. Okay, so this is the final answer for this. So इसको लिख लेना. So we will do this. Evaluate the following using suitable identity. So it is 99 cube. 99 cube first sum कर रहे हैं, which is equal to 100 minus 1. 100 minus 1 the whole cube. So ये कौन से नंबर के नियर बाई वाला नंबर है, राउंडिंग ऑफ वाला वो नंबर लेना. ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको 100 minus 1 the whole cube लिखा. Now this is of the form a minus b the whole cube. a minus b the whole cube होगा और इसका फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से याद है. ठीक है, इसके देखो दो फॉर्मूला है, दोनों में से कोई भी एक हम यूज कर सकते हैं. तो इसके लिए जो फॉर्मूला अभी एक बार हम ट्राई करते हैं यूज करके, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये यूज करें इसके लिए अभी. हाँ जी सर, जी सर. ओके, a इक्वल टू 100 होगा और b इक्वल टू 1 ले लेंगे हम. और इसके बाद में इस सम के लिए इस स्टेप के बाद में 99 क्यूब इज इक्वल टू 100 माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी. ऐसा लिखेंगे. ए का जगह में 100 लिखेंगे, बी का जगह में 1, ए का जगह में 100, बी का जगह में 1 और a माइनस बी यानी 100 माइनस 1. ओके, तो क्यूब है मतलब 6 जीरोस आएगा, 10 lakhs आ जाएगा. 1 2 3 4 5 6 करेक्ट. माइनस 1 माइनस 300 इंटू 99. ओके, सो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 और 2 जीरो यहाँ लगा के फिर 9 3 जा 27 2 कैरी 29700. ओके, राइट. यस सर. ओके, अभी जो है अगर 10 lakhs में से एक 1 को माइनस कर दिया तो कितने 9s आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा ना? करेक्ट है? यस सर. ओके, और अभी माइनस कर रहा है 29700 29700 29700. ओके, तो 992079. ओके, तो इतना सिंपल है, ये आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ के कर सकते हो. ठीक है, ओके. इसको तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे. गिवन प्रॉब्लम है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर. ओके, और उसके बाद हम लिखेंगे इसका फॉर्म कौन सा है उसको ऑब्जर्व करेंगे और दिस इज ऑफ द फॉर्म लिख के किसके फॉर्म में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b द होल क्यूब, इसका फैक्टराइजेशन होगा. ओके, तो इस फॉर्म में हम लेके आएंगे इसको फाइनल आंसर को. राइट, तो ये किसका क्यूब है वो बोलेंगे. 8a क्यूब जो वो किसका क्यूब है वो लिखेंगे, प्लस b क्यूब किसका क्यूब है b वाला टर्म वो लिखेंगे, और 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर लिखेंगे. 3ab स्क्वायर. तो a का जगह में 8a क्यूब है वो किसका क्यूब है? 8a क्यूब इज द क्यूब ऑफ 8a cube is the cube of 8a 2a whole cube. 2a whole cube and b cube is the cube of b whole cube. b whole cube or b cube simply you can say. Yes. And now we know what is a and what is b.
जी अभी हमें पता चल गया कि ए का जगह में क्या है और बी का जगह में क्या हमें पता चल गया है ना. हाँ जी सर. So our A is 2A. Therefore, here you have to write 2A and here you have to write B. And 2A, B here. Okay. So now this is very easy now. You have to verify here whether this is the same, this term, whether this term will give the answer of what you have in the problem. This one. You have to check. When you multiply this, you must get this. So 2a the whole square is 4a square, 4 into 3 is 12, and a square is there and into b is there. So 12a square b we are getting. From this term, we are getting this term. And in the same way, you have to check whether you are getting the product of this one. Product of this one is 6ab square. Okay. That you have to check. So b square is b square and 3 into 2 is 6. A into b square is ab square. So 6ab square we are getting from this. Okay. So now directly we can write. Only have to check in the mind also you can check. It will take only fraction of seconds for checking this. So it is 2a plus b the whole cube. Finally you can write. So this is the factorized form of this one. Okay. So in the same way you can see for the second sum, it is a minus b the whole cube you will get that identity. And next I am doing for you is third sum I am doing. Okay, third sum. Okay, right? So what is that third sum? It is 27. The second sum you will do. I am doing third sum. Okay, it is 27 minus 125a cube minus 135a plus 225a square. Okay. So now you have to write in the form of cube. Okay. So this is of the cube of which number? This 27 is the cube of which number? Minus this is also a cube of which number you have to write? Minus 3a square b, 3a square b plus 3ab square, 3ab square. So this is the cube. 27 is the cube of which number? Sir, 9 whole cube. No. The 27 cube. अरे भाई 3. Okay, good. Now 125 is the cube of which number? Sir, 125. I already told you have to read the cubic number up to 15. So when you are taking this much of time, that means you are not revising every day. 125 is a very simple. It's a cube of 5. कोई बच्चा भी छोटा बच्चा भी बोल देगा. इसलिए आपको रिवीजन करने का जरूरत है, मैं बोल रहा हूँ. ओके, बोला जल्दी से बोलना भैया. Cube of which number? Okay, so it is 5a the whole square. Now everywhere I have substituted. Now I have to check the product of the third term. Will give you the product of the third term what is given in the problem. In the same way, the product of the fourth term must be equal to the product of the fourth term in the problem. You have to check. Okay, right? So this is 3 cube. It is simple, and this is 5a the whole cube. And this one we have to check. Already we written. We need not write again. Only we have to check in the mind. We can check. So this is 9 3 is 27 into 5 is 135. Or you can write 9 5 is 45 into 3 is 135 into a. So we are getting these two products are equal. And here in this one 25. 5 square is 25. A square is there. And we can write a square. 25 into 9 is 225. So match हो रहा है, हमारा आंसर मैच हो रहा है. So this is equal to 3 minus 5a the whole cube.
So that's it. This is the answer. See what I am asking. Second sum you can do, third one I have done, fourth you can do, no जी doubt. सर हम कर रहे हैं अभी Fifth sum if you can do, then it is not a problem. You can go, you can move for the this one. Ninth sum we have to verify. So अभी हम थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे नाइन्थ फर्स्ट सम को. तो ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ओके, अभी थोड़ा सा देखना है इसको. ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से ये फॉर्म लेके आना मुश्किल है, एलएचएस से आरएचएस लाना मुश्किल है. तो हम क्या करेंगे, आरएचएस से एलएचएस लेके आएंगे. सो आरएचएस इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई. पहले एक्स के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, फिर वाई के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा. क्या बोलते हो? मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, एक्स के साथ पहले सभी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और वाई के साथ सभी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. यही रूल है कि नहीं? So now x equal to this is equal to x into x square minus xy plus y square and plus y into x square minus xy plus y square एक स्टेप ऐसा लिख लेते हैं. बाद में x into x square करेंगे तो x क्यूब होगा माइनस x into xy is x square y प्लस xy square. ओके, और इसके बाद इसको हम करेंगे प्रोडक्ट करके लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिख सकते हैं. जैसे y इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई आएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई का जो टर्म है उसके नीचे लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई. ओके, और उसके बाद इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, सो माइनस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा ऑर्डर में, और प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर इज प्लस वाई क्यूब ऐसे लिख के फाइनली जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म जो दो है वो कट हो जाएगा. ठीक है, और इसका जो ये कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा. तो यहाँ पे ये एक्स क्यूब बचा है तो एक्स क्यूब होगा और लास्ट टर्म वाई क्यूब है प्लस वाई क्यूब, तो वाई क्यूब. तो आंसर आ गया हमारा, which is equal to LHS. Okay, now this is equal to LHS. This is equal to LHS. So hence we have proved that x cube plus y cube is equal to x plus y into x square minus xy plus y square. Now this we will be going to use as a formula in the future. So one more formula you can add in the formula list what you have already in the list. One more formula is now you can add, and second sum of this ninth sum you will do in the same manner, and that formula is also useful in future. Okay, is it clear? जो गिवन प्रॉब्लम है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब को x क्यूब प्लस y क्यूब फॉर्म में लिख लेना. उसके बाद में ऐसे बोलना वी नो दैट, ऐसे लिख सकते हैं आप, वी नो दैट x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ये अपने को फॉर्मूला है, पता है. ठीक है, सो इस फॉर्म में लिख लेना, अपने को इस फॉर्म में लिख लेना है. ओके, नाउ इसको हम जो फैक्टराइज करेंगे तो प्रोडक्ट के फॉर्म में देखो, दिस इज मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये फैक्टराइज हो गया. तो 3y प्लस 5z x प्लस वाई की जगह में आएगा, और यहाँ पे 3y स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z द होल स्क्वायर, 5z द होल स्क्वायर लिखेंगे.
So this is of the form now 3y plus 5z, 3y plus 5z, 3y plus 5z, 9y square minus 3 5s are 15yz plus 25z square. So this is the factorization of this one. Okay. (27y cube plus 125z cube. So प्रॉब्लम को देखते ही हमारा थोड़ा वो प्रॉब्लम हो रहा है, नेट प्रॉब्लम हमारा है बस एक सेकंड। सो प्रॉब्लम को कभी भी ध्यान से ऑब्जर्व करना और फॉर्मूला को देखते ही, फॉर्म क्वेश्चन को देखते ही जो फॉर्म है वो याद आना चाहिए। सो वी हैव टू राइट दिस इज ऑफ द फॉर्म। याद आते ही हम लिखेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z cube minus x 3xyz is equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus xz। ऐसे हमें फार्मूला याद आना चाहिए। ओके राइट। तो जैसे ही हमको फॉर्मूला याद आ जाता है उसके बाद हम इसको किसका क्यूब है लिखेंगे। जो प्रॉब्लम है 27 क्यूब किसका क्यूब है, 27 क्यूब किसका क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इजेड क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू इजेड किसका क्यूब है। ये 27 एक्स क्यूब है ना, ये किसका क्यूब है, 3x का क्यूब है। ठीक है, और x की जगह में 3x, y की जगह में y और z की जगह में z लिख लेंगे हम। नाउ अभी हमें एक परफेक्ट फॉर्म मिल गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz मिल गया है। तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। अभी फैक्टराइज होगा 3x, फैक्टराइज होगा 3x प्लस वाई प्लस z। ओके 3x plus y plus z into 3y square in the bracket plus y square plus z square minus x into y, 3x into y minus y into z minus x into z. So 3x into z, that we have to write. So this is how we have to factorize whenever you get the expanded form like this. We observe the formula and we will write in the form, first bracket we will use, and then what is the cube and cube of which number we will identify, and then very quickly we can do this type of sums. Okay, so the final answer is 3xy, 3x plus y plus z into 9y square plus y square plus z square minus 3xy minus yz minus 3xz. So this is how we have to factorize the given problem. Okay, ये आपको वेरीफाई करना है, LHS में जो दिया हुआ वो RHS का वेरीफाई है या नहीं, ये आपको वेरीफाई करना है। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली एक 9 सम में भी ऐसे ही किया था, RHS लेके LHS प्रूफ किया था, तो सेम वे हम इधर भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसको ध्यान से आप समझ लो कि इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ डिफरेंट है, ये एकदम सेम नहीं है। ऊपर जो हमने लिखा है, देखो फॉर्मूला लिखा है इसका, तो ये जो फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इजेड क्यूब माइनस 3xyz जो है वो बिल्कुल नहीं, इसको देखो ध्यान से देखो, यहाँ क्या दिया हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, देखो ना इस फॉर्मूला में मैं जो बता रहा हूँ इस फॉर्मूला में, और यहाँ पे मैं जो इसमें बता रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, लेकिन राइट हैंड साइड देखो बिल्कुल अलग है। तो हम इसके साथ वर्किंग करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करके, और हमको ये फॉर्म आएगा उससे। ठीक है, तो वो अभी हम करके देखेंगे।
So now we have to verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to half into x plus y plus z into x minus y the whole square plus y minus z the whole square plus z minus x the whole square. Okay? हमें क्या करना है ये आपने समझ लिया क्या? जी सर. So from RHS is equal to half into x plus y plus z into bracket में x minus y the whole square plus y minus z the whole square plus z minus x the whole square. ठीक है? और सेकेंड स्टेप में ये हाफ ऐसे ही रहेगा, ये x प्लस वाई प्लस z भी ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं करना. इसको खाली एक्सपेंड करेंगे हम. इसको होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. और वैसे इसको भी एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करके, अलजेब्रा का बेसिक आइडेंटिटी, वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz. और इसको एक्सपेंड करेंगे अभी सेम वे में, z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz. ओके, उसके बाद में लाइक टर्म को ऐड करेंगे. फर्स्ट टर्म ऐसे ही आएगा, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z ऐसे ही आएगा. हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे ऐड करते समय एक्स स्क्वायर 2 बार है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 बार एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर. वैसे ही वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा और z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2z स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2xy माइनस 2yz एक एक टर्म है, माइनस 2xz ऐसे आ जाएगा. उसको लिख लेने के बाद में हम जब ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम ऑब्जर्वेशन करने पे हमें ये पता चलेगा कि इसके अंदर सभी टर्म के अंदर एक 2 कॉमन है, सब में एक 2 है. ठीक है ना? सब में एक 2 होने की वजह से इस 2 को हम बाहर लिख लेंगे. तो हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z इंटू 2 बार लिख लेंगे और अंदर जो टर्म्स लिखेंगे उसमें से 2 हटा लेंगे क्योंकि 2 बार आ गया है. ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है. 2 बार लेने के बाद में अंदर बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस z एक्स z या z एक्स. ठीक है? अब जो है इस हाफ को और उस 2 को कट कर लेंगे. ओके, इस हाफ में जो डिनोमिनेटर में 2 है और ये कट हो जाएगा. तो फाइनली हमारे पास बचेगा x प्लस वाई प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड. अभी ये उस फॉर्मूला का जो है फॉर्म में आ गया है, उस फॉर्मूला का फॉर्म में आ गया है ये. तो हम अभी डायरेक्टली जो है इसको लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं. नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz डायरेक्टली आप लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड. इतना ही है. ठीक है? ये समझ में